امتحانات سے متعلق کچھ ڈاکومنٹس اور کارڈ وغیرہ کے سلسلے میں کل مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ میری اپنے دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ لوگ بھی کل ہی آئیں گے تو میں ساتھ جا کر اپنے کام کر لوں گی۔ امثال خالی شیلف میں اپنی کتابیں سیٹ کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا تمہیں۔ کتنے بجے جانا ہے؟ ابتہاج کی ساری توجہ اس وقت امثال کی جانب تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، اور آپ رہنے دیں، میں خود ہی اپنی چیزیں سیٹ کر لوں گی۔ امثال نے ابتہاج کی بات سن کر اسے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کے ساتھ جانے سے بھی اور اس کی مدد لینے سے بھی۔ امثال اپنی اسی روپ میں واپس آ چکی تھی جو کہ خاص طور پر ابتہاج کے لیے تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں لے کر جاؤں گا۔ 9 بجے تیار رہنا۔ ابتہاج جیسا شخص سب کو برداشت کر رہا تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، کم از کم اس کے لیے، لیکن فی الحال اسے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے مسٹر ابتہاج، میں اپنے کام خود ہی کرنے کی عادی ہوں۔ امثال بھی ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ تمہیں ہر بات میں بحث کرنا ضروری ہے؟ جب میں نے ایک بار کہہ دیا ہے تو سنتی کیوں نہیں ہو تم؟ ہاں؟ اب کے ابتہاج نے امثال کو کونی سے پکڑ کے اپنی جانب گھمایا تھا، لہجہ کافی سخت اور غصے والا تھا۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد آپ کیا امید رکھ رہے ہیں مجھ سے؟ چھوڑے میرا ہاتھ۔ امثال ابتہاج کی گرفت ڈھیلی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی تھی، لیکن اس کی گرفت سے نکلنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ حقیقت میں تو امثال ابتہاج کے قریب ہونے سے گھبرا رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، بہت ہمت ہے نا تمہارے اندر، تو چھڑا کر دکھاؤ۔ ابتہاج نے امثال کی گھبراہٹ محسوس کر لی تھی اور اب وہ امثال کو تنگ کرنے کے موڈ میں آ چکا تھا۔ ابتہاج نے امثال کے دونوں ہاتھ اسی کی کمر کے پیچھے موڑ کر پکڑ رکھے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ ابتہاج کے ایسا کرنے سے امثال مزید ابتہاج کے قریب ہو گئی تھی، وہ بھی ایسے کہ امثال کا پورا وجود ابتہاج کے سہارے لٹکا ہوا تھا۔ امثال دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کرنے کے لیے پیچھے کی جانب جھک رہی تھی۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا، خود ہی چھڑاؤ اپنے آپ کو، ورنہ ایسی ہی کھڑی رہو ساری رات، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ابتہاج نے امثال کو اپنی جانب ہلکا سا جھٹکا دیا تھا، جس سے فاصلہ مٹ گیا تھا اور امثال ایک بار پھر ابتہاج کے قریب ہو گئی تھی۔ یہ آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، میں تو ہل بھی نہیں سکتی ایسے۔ ابتہاج کا اتنا قریب امثال پہلی بار ہوئی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پہ حیا کے فطری رنگ نمایاں تھے، جنہیں ابتہاج بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تو کوئی چیٹنگ نہیں کی، تم خود کو چھڑا نہیں پا رہی، اس لیے بہانے بنا رہی ہو۔ ابتہاج کو بہت مزہ آ رہا تھا اس کھیل میں۔ اس وقت دونوں ایک عام جوڑے کی طرح لگ رہے تھے، محبت کے رشتے میں بندہ نوک جھوک کرتا عام جوڑا۔ جی نہیں، میں چھڑا سکتی ہوں خود کو، لیکن آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، اتنی سختی سے میرے ہاتھ موڑے ہوئے ہیں۔ امثال روحان سی صورت بنا کر بولی تھی، وہ اپنی معصوم شکل کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی۔ اتنی بھی زور سے نہیں پکڑا ہوا میں نے جتنی رونے والی تم شکل بنا رہی ہو، آرام سے پکڑا ہے۔ اب تمہیں تکلیف میں بھی تو مبتلا نہیں کر سکتا میں۔ تم یہ بات مان لو کہ تم کو میری گرفت سے آزاد نہیں کروا سکتی۔ ابتہاج کو امثال کی معصوم سی شکل میں بہت پیار آ رہا تھا، اور یہ لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا۔ میں چھڑا سکتی ہوں، دیکھیے آپ۔ امثال بہت کانفیڈنس سے بولی تھی اور خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن ابتہاج کی گرفت بالکل بھی ڈھیلی نہ پڑ رہی تھی۔ 5 منٹ مزید کوشش کرنے کے بعد امثال تھک گئی اور پھر آخر ہار مان لی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے جان، نازک سی تو ہو تم۔ ابتہاج ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امثال کو اب غصہ آ رہا تھا۔ ایک تو وہ ناکام ہوئی تھی، دوسرا ابتہاج اس پہ ہنس رہا تھا۔ مذاق نہیں اڑا رہا، میں تو سچ بتا رہا ہوں، اور ہاں، اپنی دھڑکنیں سنبھالو، مجھے ڈر ہے کہیں باہر ہی نہ آ جائے تمہارا دل۔ 9 بجے تیار رہنا۔ ابتہاج بہت محبت سے امثال کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے تھے اور آخر میں اسے چھیڑنا نہ بھولا تھا۔ ابتہاج اپنی بات کہہ کر اسٹڈی سے نکل گیا تھا۔ امثال، جس کا دل ابتہاج کی قربت کی وجہ سے زوروں سے دھڑک رہا تھا، ابتہاج کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اب پاگل ہونے کو تھا۔ امثال کا ایک ہاتھ ماتھے پہ تھا، جبکہ دوسرا دل کی جانب، جیسے وہ اپنے دل کو سنبھال رہی ہو۔ اب ہوش میں آ جاؤ۔ امثال کا چہرہ حیا کے رنگوں سے گلنار تھا۔ چڑیا کے چہچہانے کی آواز ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ تمام پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل کر معمول کے مطابق
रिस्क की तलाश में खुली फिजा में परवाज कर रहे थे। कितना बदल जाती हैं लड़कियां शादी के बाद। वो अमसाल जिसके अलार्म बजने से पूरा घर उठ जाता था, लेकिन वो ना उठती थी। आज अलार्म की पहली आवाज तो उठ गई थी। वो जो नाजों से पलती हैं, दूसरे घर जाकर तमाम जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। 9 बजने वाले थे और अमसाल तकरीबन तैयार हो चुकी थी। बस बाल बनाना बाकी थे, जो कि सबको सबसे मुश्किल काम लगता था। लंबे घने बालों को सुलझाना और फिर उन्हें बनाने में उसके हाथ थक जाते थे। अमूमन अमसाल अपने बालों को जूड़े की शक्ल में कैद रखती थी, बकौल उसके हाथों में दर्द नहीं होता और बाल बुरी नजर से भी महफूज रहते हैं। इत्तेहाज ड्रेसिंग रूम से बिल्कुल तैयार होकर बाहर आया था। नेवी ब्लू शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी हुई थी, साथ ही ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वो इब्तिहाज अपनी आम सी हुलिये में भी नजर लग जाने की हद तक प्यारा लगता था। इब्तिहाज की नजर अमसाल पे गई, जो अपने बालों को पोनीटेल में कैद करने में मगन थी। मुस्कुराहट ने इब्तिहाज के लबों को छुआ था। इब्तिहाज भी ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ा था और खुद पे अपनी पसंदीदा परफ्यूम छिड़क कर अब घड़ी पहन रहा था। अमसाल मिलाकर अपने बाल बनाने में कामयाब हो गई थी। पोनी पे ब्रश फेरते हुए उसकी नजरें इब्तिहाज के वजूद से टकराई थी। वो अपने आस पास की दुनिया भूल रही थी। याद था तो सिर्फ इतना कि इब्तिहाज उसके बराबर में खड़ा है। अमसाल न जाने में ही अपने हैंडसम शोहर का आंखों से मुआयना करने में मसरूफ थी। कुछ लम्हात गुजरे थे जब अचानक उसे होश आया था। उसने खुद को कोसा, साथ ही अपना बैग और फाइल वगैरह उठाई थी। दोनों नाश्ता करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए थे। अलमीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो यूनिवर्सिटी कैसे जाए। उसे रोज उसका भाई ही यूनिवर्सिटी से लेता और छोड़ता था, लेकिन आज उसके भाई को किसी जरूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था। अलमीर ने कभी अकेले सफर नहीं किया था, इसलिए आज भी उसकी हिम्मत ना हो रही थी। हमेशा की तरह आज भी तमाम दोस्तों ने प्लान बनाया था कि साथ ही जाएंगे। ऐसे सब की मुलाकात भी हो जाती, क्योंकि क्लासेस अब खत्म हो चुकी थी। अलमीर अभी यही सोच रही थी कि क्या करे, इतने में उसका मोबाइल बजने लगा था। तुम निकल गई यूनिवर्सिटी के लिए? सलाम दुआ के बाद अरहान की आवाज आई थी। नहीं, मैं अभी घर पे ही हूँ। कोई काम है क्या? अरहान की आवाज सुनकर अलमीर का दिल हमेशा की सी रॉकेट की रफ्तार से धड़कता था। हाँ, कुछ चीजें मैसेज कर रहा हूँ, लेती आना साथ। मेरे पास नहीं है। अरहान ने फोन करने की वजह बताई थी। वो दरअसल अरहान, मैं आज नहीं आ सकूंगी, तुम वहां से कह दो, वो ले आएगी। अलमीर की आवाज में ही उदासी जाहिर थी। क्यों? अरहान ने बस इतना ही कहा था। भाई किसी जरूरी काम से गए हैं, इसलिए वो मुझे छोड़ नहीं सकते और अकेले आने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तुम सबसे मेरी तरफ से मुआवजत कर लेना। अलमीर ने वजह बयान की। तुम तैयार हो ना? नहीं भी हो तो हो जाओ, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ लेने। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, बाय। अरहान ने अपनी बात कहकर कॉल काट दी थी। अरहान के इस अंदाज पे अलमीर हैरान थी, लेकिन दिल खुशी से झूम रहा था। अरहान ने जो चीजें कही थी, अलमीर ने वो अपना बैग में डाली थी और अब अरहान के आने का इंतजार कर रही थी। गाड़ी में खामोशी थी। इब्तिहाज सामने देखे ड्राइव कर रहा था, जबकि अमसाल किसी को मैसेज कर रही थी। इब्तिहाज की आदत थी, वो गाड़ी चलाते हुए अक्सर गाने सुनता था और अब भी उसने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर लिया था। अब गाड़ी में गुलकार की आवाज सुर बिखेर रही थी। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तू ए दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर। गुलकार की आवाज के साथ एक और आवाज भी शामिल थी, जिसका मालिक वो खूबरू नौजवान था। चूंकि गाने की आवाज हल्की थी, इसलिए इब्तिहाज की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। बिलाशुबा इब्तिहाज बहुत अच्छा गाता था। गाने के ये अल्फाज इब्तिहाज को बिल्कुल अपने जज्बात लगे थे। अमसाल जो कि मैसेज लिख रही थी, इब्तिहाज की आवाज सुनकर एक पल को उसके हाथ थमे थे और उसने इब्तिहाज की जानिब देखा था, जो कि उसे ही देख कर गा रहा था। वो फौरन ही सीधी होकर बैठ गई थी। अमसाल को इब्तिहाज के गाने से महसूस हो रहा था जैसे वो उसे कोई पैगाम दे रहा है। उसे झट से गाना ही बंद कर दिया था और उसकी इस हरकत पर इब्तिहाज मुस्कुरा कर रह गया था। लगता है ये शख्स मुझे अपना दीवाना बनाकर ही दम लेगा। ए अल्लाह, मुझ मासूम पे इतना जुल्म क्यों? अमसाल ने दिल में दुहाई दी थी। इब्तिहाज में हर वो खूबी थी जो किसी नॉवेल के हीरो में होती है, और अमसाल तो नॉवेलों की दीवानी थी। अब अमसाल को लगता था कि नॉवेल का कोई हीरो भूले भटके से उसकी जिंदगी में आ गया है, या फिर उसकी जिंदगी ही एक नॉवेल है। सब दोस्त यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे सिवाय अमसाल के। सबने तय किया था कि अमसाल के पहुंचने तक कतार में खड़े हों ना ज्यादा बेहतर है, जो कि काफी लंबी थी। अमसाल का फोन मुसलसल टू टू कर रहा था, क्योंकि माहा उसे एक के बाद एक जल्दी पहुंचने के मैसेज कर रही थी। वहां ऐसी ही करती थी, मैसेज करने पे आती थी तो उनका
ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाया करता था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब यूनिवर्सिटी में ब्लैक रेंज रोज और उसके पीछे ब्लैक वीगो दाखिल हुई थी। अमसाल के दोस्त जो कतार में खड़े थे समझ गए थे कि अमसाल पहुंच चुकी है। माहा अब अमसाल को मैसेज पे छेड़ रही थी, जिन्हें पढ़कर अमसाल हंस रही थी। गार्ड्स को साथ लाने की क्या जरूरत थी? मैं कौन सा कोई सियासतदान हूँ जो मेरी जान को खतरा होगा। माहा के मैसेज से अमसाल को पता चला कि गार्ड्स भी साथ हैं। अमसाल गाड़ी के अंदर बैठे बाहर को सब साफ देख सकती थी, लेकिन बाहर मौजूद लोग अंदर नहीं देख सकते थे। सबकी तवज्जो गाड़ी की जानिब थी। मुझे भी कोई शौक नहीं है गार्ड्स को साथ लिए फिरने का, तुम्हारा ही काम करवाएंगे। इब्तिहाज ने भी धू-बधू जवाब दिया था, मैं खुद करवा लूंगी अपना काम, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरा। अमसाल दरवाजा खोलते हुए बोली थी, जो लॉक होने की वजह से ना खुला था। कोई जरूरत नहीं है इतनी लंबी लाइन में खड़े होने की, गर्मी भी है काफी, बैठी रहो गाड़ी में ही एसी में आराम से। मैं बात करने जा रहा हूँ अंदर, बाकी गार्ड देख लेंगे, कुछ ही देर में हो जाएगा आपका काम। इब्तिहाज ने अमसाल की गोद में मौजूद फाइल ले ली थी, जबकि अमसाल कलश कर रह गई थी। मैं आपकी तरह कोई नवाब नहीं हूँ जिसको एसी के बगैर सांस नहीं आती है। मुझे नहीं आदत एसी की, मैं बहुत आम सी जिंदगी गुजारने की आदी हूँ। फाइल दे, मेरा सब इंतजार कर रहे हैं। अमसाल चिढ़ते हुए बोली थी और अपनी फाइल लेने की भी कोशिश की थी। आदत नहीं तो आदत डाल लो, मैं आता हूँ, गाड़ी में ही रहना, बाहर मत निकलना। अपनी बात कहकर इब्तिहाज बाहर निकल गया था। समझते क्या है ये खुद को, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अमसाल का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दे। इब्तिहाज दो गार्ड्स के साथ अंदर की जानिब गायब हो गया था, जबकि बाकी गार्ड्स गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े थे। अक्सर जब अमसाल ऐसे ही गर्मी और तपती धूप में अपने दोस्तों के हमरा लंबी कतारों में खड़े अपने बारी का इंतजार करती थी, उस वक्त उसका शिद्दत से दिल चाहता था कि कोई उसका काम करवा दे और वो एक जगह बैठी रहे। इस ख्वाहिश का इजहार वो अपने दोस्तों से भी करती थी और फिर सब इस बात पे आपस में मजाक मस्ती करते थे। आज अमसाल की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। बहन क्या हुआ है, अब बाहर तशरीफ ले आओ। एक बार फिर माहा का मैसेज मौसूल हुआ था, तुम्हारा पसंदीदा इब्तिहाज भाई ने मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया है। अमसाल ने जवाबी पैगाम भेजा, ओहो वो इसीलिए इब्तिहाज भाई अंदर ऑफिस गए हैं, ऐसे ही थोड़ी ना मेरे फेवरेट हैं वो। माहा का जवाब मौसूल हुआ था, साथ में बहुत से इमोजीज भी थी। तुम मेरी दोस्त हो या उनकी? अमसाल सड़े हुए मुंह साथ बनाकर भेजे थे। दोस्त तुम्हारी हूँ लेकिन उनकी साली भी हूँ। माहा अमसाल को तंग कर रही थी, यहाँ आ जाओ तुम सब, बोरियत हो रही है मुझे। अमसाल ने अब कॉल की थी, बेटा हमारे काम करने कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही करने हैं, आते हैं काम करवा कर। माहा ने जवाब दिया था। पीछे सबकी बातों का भी शोर था, तुम्हारे इब्तिहाज भाई हैं, करवाएंगे अब तुम लोगों का काम भी। वो शौक है उन्हें अपने पावर दिखाने का, आ जाओ वरना बात नहीं करूंगी किसी से। अमसाल धमकियों पे उतर आई थी, आखिर को इब्तिहाज के साथ जो रहने लगी थी। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि अमसाल को सब दोस्त गाड़ी के तरफ आते दिखाई दिए थे। इससे पहले के गार्ड्स उन्हें रोकते, अमसाल गाड़ी से बाहर आ गई थी। वो सब मिलकर बहुत खुश हो गई थी। सबसे पीछे अरहान खड़ा था। अमसाल को आज अरहान कुछ बेहतर हालत में लग रहा था। उसको यकीन था कि अरहान इस मरहले से बहुत जल्द निकल जाएगा, क्योंकि उसको अपने रब के बाद अलमीर पे बहुत भरोसा था। अमसाल सबसे बातें कर रही थी, इसी असना में इब्तिहाज भी ऑफिस से बाहर आ गया था। अमसाल को गाड़ी से बाहर खड़ा देख के इब्तिहाज ने सोचा था कि अमसाल उसकी कभी नहीं सुनने वाली। इब्तिहाज को सबसे ज्यादा चिढ़ वहां अरहान की मौजूदगी से हुई थी। वो नहीं चाहता था कि अरहान अमसाल से मिले। अरहान का अमसाल को देखने का अंदाज इब्तिहाज के तन बदन में आग लगा देता था। शादी के बाद से अमसाल मजीद खूबसूरत लगने लगी थी और आज हल्के नीले रंग के जोड़े में वो किसी परी की मानन लग रही थी। इब्तिहाज को अपने उभरते जज्बात पे काबू रखना मुश्किल हो रहा था। एक ये भी वजह थी जो इब्तिहाज नहीं चाहता था कि अमसाल गाड़ी से बाहर आए और किसी की भी नजर उसकी बीवी पे पड़े। इब्तिहाज अपनी चीजों को लेकर बहुत शिद्दत पसंद था, अमसाल तो फिर उसकी जान थी। सुने, इन लोगों का भी काम करवा दें प्लीज। इब्तिहाज ने सबसे सलाम दुआ कर ली थी। उसके बाद अमसाल ने अपनी मासूमाना शक्ल बनाकर इब्तिहाज से कहा था, और इब्तिहाज वो तो अमसाल की इस मासूम सूरत पे अपनी जान भी वारने को तैयार था। जरूर, क्यों नहीं, हम तो आपके गुलाम हैं, हुक्म के मुंतजिर। इब्तिहाज अमसाल को तंग करते हुए बोला था, जबकि उसके सब दोस्तों ने अमसाल को आंखों ही आंखों में छेड़ा था। शर्म नाम की चीज तो इब्तिहाज में थी ही नहीं।
कुछ ही देर में आप लोगों का भी काम हो जाएगा। इत्तेहाद ने सब डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने बाकी गार्ड्स को ऑफिस की जानिब रवाना किया था। थैंक यू सो मच इत्तेहाद भाई, सबने उसका शुक्रिया अदा किया था। अलमीर, माहा, अशमील और रेहान कैंटीन चले गए थे सबके लिए कुछ लेने, जबकि अरहान, मुस्कान, अमसाल और इत्तेहाद वहीं गाड़ी के पास खड़े थे। मुस्कान भी आज इन सब के दरमियान मौजूद थी और अमसाल से कुछ पूछ रही थी। इत्तेहाद फोन पे किसी से बात कर रहा था और अरहान खामोशी से एक तरफ खड़ा था। अरहान खामोश रहने वाला बंदा नहीं था, लेकिन उसे रोग ही ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल खामोश होकर रह गया था। अमसाल, मुझे एक जरूरी बात करनी है तुमसे। मुस्कान वहां से चली गई तो अरहान गोया हुआ। हाँ बोलो, क्या बात है? अमसाल ने अपने चेहरे पे आई बालों की लट को कान के पीछे करते हुए जवाब दिया था। मुझे अकेले में कुछ बात करनी है तुमसे, चल सकती हो मेरे साथ? अरहान इब्तिहाज को देखते हुए बोला था, जो उसकी इस बात पे उसे घूर रहा था। तुम्हें जो बात करनी है यहीं कर लो। अमसाल ने भी इब्तिहाज की जानिब देखा था और उसे पता था कि इब्तिहाज को अरहान की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। क्यों? इसको तुम पे भरोसा नहीं है जो तुम डर रही हो इससे, या फिर इसको डर है कि कहीं तुम मेरे साथ भाग न जाओ? अरहान के होंठों पे हल्की मुस्कुराहट थी, जलाने वाली, चिढ़ाने वाली। वो कटीले अंदाज में ये सब इब्तिहाज को ही सुना रहा था। इब्तिहाज अपनी मुठ्ठियां बीचे गुस्से में काबू पाने की कोशिश कर रहा था। अमसाल को अरहान को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। जाओ अमसाल, जाकर सुन लो इस बेचारे की भी। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा भरोसा है, और जहां तक भागने वाली बात है तो ये पहले नहीं भागी तो अब क्या भागेगी? तुम तो इससे मोहब्बत का दावा करते हो, तो इसके बारे में इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हो? आज तो सुन लिया है और बर्दाश्त भी कर लिया, लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में कोई भी फालतू लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी सांसें रोकने में एक मिनट नहीं लगाऊंगा। इब्तिहाज दांत पीसते हुए जवाब दे रहा था। वो एक ऐसा जवाब देता था कि सामने वाला बोलने के काबिल न रहता था। बात मजीद आगे ना बढ़े इसलिए अमसाल वहां से चल दी थी। अरहान भी उसके पीछे जा रहा था और इब्तिहाज की नजरें अब भी अरहान के पीठ को खा जाने वाले अंदाज में देख रही थी। क्या गलत बोला है मैंने? हाँ। अरहान वैसे ही इब्तिहाज की बात से गुस्से में था। अमसाल के ऐसा कहने से फट पड़ा था। कुछ नहीं, तुम्हें जो बात करनी है वो करो। अमसाल बहस करने के मूड में ना थी। हाँ, मैं कह रहा था कि तुम खुला ले लो और इस शख्स से, उसके बाद हम दोनों निकाह कर लेंगे। अरहान इतनी बड़ी बात बहुत आसानी से बोल गया था। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? जानते भी हो कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? अमसाल ने अरहान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ रसीद किया था और गुस्से से तकरीबन चिल्लाई थी। जिस जगह वो दोनों खड़े थे वहां कोई न था। अमसाल, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? अरहान अपने गाल पे हाथ रखे बेयकीनी से गोया हुआ था। हाँ, तुम्हारे होश ठिकाने पर लाने के लिए तुम्हें ये थप्पड़ मारा है। आज के बाद अगर तुमने मुझसे इस किस्म की कोई बात की तो वो हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। अमसाल इस वक्त शदीद गुस्से में थी। उसे अरहान की ये बात जहर लगी थी। क्यों रहना चाहती हो तुम उस पागल शख्स के साथ? अरहान भी गुस्से में बोल रहा था। क्योंकि शौहर हैं वो मेरे। मैं एक शरीफ घराने की लड़की हूँ। शादी मेरे लिए कोई मजाक या खेल नहीं है। अपने शौहर की इज्जत करवाना मेरा फर्ज है, फिर चाहे वो जबरदस्ती ही शौहर क्यों ना बना हो। अमसाल को अरहान का तर्ज तखातुब बहुत नागवार गुजरा था। इब्तिहाज के लिए पागल का लफ्ज अमसाल से बिल्कुल भी बर्दाश्त न हो रहा था। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? फिलहाल वो ये बात समझने से कासिर थी। डोंट टेल मी अमसाल कि तुम्हें इससे मोहब्बत हो गई है, तुमने कबूल कर लिया है उसे। अरहान के लहजे में दुख झलक रहा था। मोहब्बत नहीं हुई मुझे उनसे, ना ही उन्हें कबूल किया है मैंने, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उनके बारे में कुछ भी सुन लूंगी। बेहतरी इसी में है कि अब तुम आगे बढ़ो अरहान। हमारा साथ नसीब में नहीं था। अमसाल अरहान को ये सब आराम से समझाना चाहती थी, लेकिन अरहान ने गलत बात करके उसका दिमाग घुमा दिया था। हर चीज का इल्जाम नसीब को नहीं दिया जाता अमसाल। अरहान के लहजे में मायूसी थी। हाँ, नहीं दिया जाता नसीब को इल्जाम, और मैं नसीब को इल्जाम नहीं दे रही। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मेरा जोड़ अल्लाह ने हमेशा से इत्तेहाद के साथ ही तख्लीक किया था। जो तुम्हारे नसीब में है शायद मैं उसे जानती हूँ। जिसे तुम्हारे लिए बनाया गया है तो तुम जाने में ही सही, लेकिन बहुत तकलीफ दे चुके हो। अमसाल ने अपने गुस्से को पिया था। उसे यही वक्त बेहतरीन लगा था अरहान ने अलमीर के मुतालिक बात करने के लिए। इब्तिहाज बज़ाहिर तो हाथ में पकड़े मोबाइल में मसरूफ था, लेकिन उसकी तमाम तर हसियात अमसाल की जाने मुतवज्जा थी। इब्तिहाज दोनों से दूर अपनी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा था। उसे सिर्फ अमसाल नजर आ रही थी। अमसाल को रहान से बात करते हुए 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन दोनों की बात अब भी जारी थी।
इब्तिहाज को अमसाल पे पूरा भरोसा था, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि अरहान उससे बात करे या जानते हैं कि अरहान अमसाल के बारे में किस अंदाज से सोचता है। इब्तिहाज अकेला ही खड़ा था, लेकिन अब मुस्कान उसके पास आकर खड़ी हो गई थी। अब बोर हो रहे होंगे, मैं आपको कंपनी दे देती हूँ। मुस्कान मुस्कुराते हुए इब्तिहाज से मुखातिब हुई थी। नहीं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। जनाना आवाज पे इब्तिहाज ने अपना सर उठाया था और फिर जवाब दिया था, अरे कोई बात नहीं, अब आपकी बीवी तो अपने आशिक के साथ चली गई है बातें करने। मुस्कान के लहजे में बहुत कुछ था जो इब्तिहाज समझ गया था। मुस्कान जिसका हर अमीर शख्स पे दिल आ जाता था, इब्तिहाज को देखकर तो पागल होने को था। बेहतर होगा अपनी जबान को काबू में रखो, वरना अपने हाथों से काटूंगा, वो भी बहुत बेदर्दी से। आजमाना चाहोगी? इब्तिहाज ने सर्द लहजे में कहा था। चेहरे के तासुरात पथरीले हो गए थे। आप तो गुस्सा ही हो गए, मैं क्यों भी झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। खैर छोड़े। इब्तिहाज के ठंडे लहजे और आंखों के तासुरात ने मुस्कान के बदन में सनसनी दौड़ा दी थी। वो डर गई थी, इसलिए बात बदलना बेहतर समझा। इब्तिहाज सामने देखने लगा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने किसको तकलीफ दी है? अरहान को कुछ समझ ना आया था। ठीक ही कह रही हो, तकलीफ दी है तुमने उसे, और अब भी दे रहे हो अपने साथ ऐसे जुल्म करके। अमसाल का गुस्सा ठंडा हो चुका था। उसने इरादा कर लिया था कि आज वो अरहान को अलमीर के बारे में बता देगी, क्योंकि वो दोनों को जल्द से जल्द साथ और खुश देखना चाहती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाह रही हो, साफ साफ कहो। अरहान उलझा हुआ था। मैं अलमीर की बात कर रही हूँ अरहान, आखिरकार अमसाल ने बोल दिया था। अलमीर? अपनी अलमीर? उसका जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? अलमीर के अचानक जिक्र पे अरहान मजीद उलझ गया था। हाँ, हमारी अलमीर, और वो बीच में नहीं आई, वो हमेशा से थी। बस तुम जैसे पागल शख्स के पास वो आंखें ही नहीं जिससे तुम उसे देखते। बेवकूफ इंसान, वो दीवानी मोहब्बत करती है तुमसे। अमसाल ने अरहान के सर पे धमाका किया था, साथ ही उसका दिल चाह रहा था कि अरहान को एक और लगा दे। इतनी वाज़ेह बात उसे समझ ना आ रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। अरहान का दिमाग इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, बल्कि तुम ही पागल हो जिससे दिखाई नहीं दी उसकी मोहब्बत। अमसाल सोच रही थी कि कहाँ जाकर अरहान का सर फाड़े। अच्छा, मान लिया कि वो मोहब्बत करती है, तो अब मैं क्या करूं इसमें? अरहान लापरवाह से अंदाज में बोला था। तुम्हें पता है, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे का डिजाइन बिगाड़ दूं मैं, फिर तुम्हें अक्ल आएगी। अमसाल के सब्र का दामन डोल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या रद्द-ए-अमल दूं इस बात का। अरहान के लिए वाकई ये एक झटका था। अरहान, मेरी बात को समझने की कोशिश करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें, आगे बढ़ो। कब तक ऐसे रहोगे? तुम इतने होनहार हो और अपने वालिदैन का अकलौता सहारा, ऐसे खुद को बर्बाद मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आंखें खोलो अपनी और देखो उस लड़की को जिसकी आंखों में तुम्हारे लिए मुझे मोहब्बत का समंदर ठाठे मारता नजर आता है। अलमीर से ज्यादा कोई भी लड़की तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकती। अमसाल अरहान को समझाने की कोशिश कर रही थी। मुस्कान काफी देर से कोशिश कर रही थी इत्तेहाज को अपनी जानिब मुतवज्जा करने की, लेकिन सामने भी मीर इत्तेहाज जहांगीर खड़ा था, जो अमसाल के अलावा किसी भी लड़की को दूसरी बार देखना तक गवारा न करता था। इत्तेहाज अपनी गाड़ी की बोनट से टेक लगाकर खड़ा मुसलसल मोबाइल में ही मसरूफ था। आसपास काफी दरख्त थे और मौसम की वजह से हवा के साथ कुछ पत्ते भी झड़ रहे थे। कुछ ही मिनटों बाद हवा का एक तेज झोंका आया था और बहुत से पत्ते हवा के संग जमीन बोस हुए थे, जिसमें से कुछ छोटे पत्ते इत्तेहाज के बालों पे आकर गिरे थे। इत्तेहाज उन पत्तों को हटाना इससे पहले एक हाथ उसके बालों तक पहुंच चुका था। मैं अपनी मोहब्बत को नहीं भूल सकता अमसाल, और ना ही किसी और से मोहब्बत कर सकता हूँ। अमसाल की पूरी बात सुनने के बाद अरहान ने बस यही कहा था, ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंसान को जिससे मोहब्बत और अपनायत मिलती है तो उसे उस शख्स से कभी न कभी मोहब्बत हो ही जाती है। और दूसरी बात, इस मुस्कान की बच्ची को नहीं छोड़ूंगी मैं। अमसाल अरहान को आगे मजीद कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन कुछ और ही मुंह से निकला था। अपनी बात कहते हुए जब अमसाल की नजर इत्तेहाज की जानिब गई, जो मंजर उसकी आंखों ने देखा, न जाने क्यों अमसाल को शदीद गुस्सा आने लगा था। अमसाल अरहान को वहीं छोड़कर इत्तेहाज की जानिब तेज कदमों से बढ़ रही थी। और अमसाल, तुम कहती हो कि तुम्हें इत्तेहाज से मोहब्बत नहीं है? अरहान अमसाल को खुद से दूर जाते हुए देख रहा था, फिर दर्द भरी मुस्कुराहट अपने होंठों पे सजाए खुद से खोया हुआ था। अरहाल अमसान की कई बातों पे गौर करना शुरू हो गया था। ये क्या बेहूदगी है? पागल तो नहीं हो तुम? इत्तेहाज सख्ती से गोया हुआ था।
मैं तो बस ये पत्ता हटा रही थी, मुस्कान ने इब्तिहाज के आगे अपने हाथ में पकड़ा पत्ता लहराते हुए कहा था। जब इब्तिहाज के बालों पे पत्ते आकर गिरे थे तो मुस्कान ने एक लम्हे की भी देर किए बगैर इब्तिहाज के करीब होकर पत्ता हटाया था और साथ ही इब्तिहाज के बालों में अपनी उंगलियां चलाई थी, उन्हें ठीक करने की गर्ज से। मुस्कान की इस हरकत पे इब्तिहाज को बहुत गुस्सा आ रहा था। दूसरी जानिब अमसाल ये मंजर देख चुकी थी और अब दोनों की जानिब बढ़ रही थी। मेरे हाथ सलामत हैं और दूर होकर खड़ी हो मुझसे चीपिस्ट। इब्तिहाज का गुस्सा कम न हो रहा था। अलमीर, माहा और अशमीर रेहान भी वापस आ चुके थे और उन्होंने भी मुस्कान को देखा था। माहा और अलमीर का तो बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर दें। पहले मुस्कान ने रेहान को पागल बनाया था और अब इब्तिहाज को अपने अदाओं की जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। इब्तिहाज अपने बालों पे हाथ चलाकर उन्हें फिर से सेट कर रहा था जो हवा से बार बार खराब हो रहे थे। इब्तिहाज की नजरों ने अमसाल के सराफे को फोकस किया था जो शक्ल पे पथरीले तासरात लिए उसी तरफ आ रही थी। हो गया तुम्हारा ड्रामा, अपनी ये चीप हरकतें किसी और के साथ करना। मुस्कान अमसाल वहां पहुंचते ही मुस्कान को कोहनी से खींच कर एक जानिब ले गई थी। क्या मसला है तुम्हारा, मैंने क्या किया है? मुस्कान अपने हाथ मसलते हुए बोली थी जबकि अमसाल ने ज्यादा सख्ती से नहीं पकड़ा था। तुम नन्ही काकी हो ना जो तुम्हें पता नहीं। रेहान के वक्त उसकी वजह से चुप रही थी मैं, लेकिन अब नहीं रहूंगी। इसलिए बेहतर होगा मेरे शोहर से दूर रहो वरना तुम्हें किसी पे भी लाइन मारने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी ये दाएं किसी और को जाकर दिखाना, इनका इब्तिहाज पे कोई असर नहीं होगा। अमसाल अपनी आखिरी बात यकीन से बोली थी। खुशफहमी है तुम्हारी अमसाल, तुम्हारा शौहर मुझ पे फिदा हो चुका है। मुस्कान पता नहीं कौन सी दुनिया में थी। हा हा हा, सही कहते हैं भाई, बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े ही नजर आते हैं। अमसाल इस्तेहजाई अंदाज में कहकर वहां से चली गई थी जब मुस्कान का गुस्सा से बुरा हाल था। थोड़ा मजीद वक्त गुजरा था और फिर सबका काम हो गया था। इब्तिहाज के तमाम गार्ड वापस आ चुके थे। इब्तिहाज ने सब के डॉक्यूमेंट्स उनको वापस किए थे और सबने उसका शुक्रिया अदा किया था जिसे इब्तिहाज ने दिल से कबूल किया था। सब लोग अब घर जाने के लिए निकल रहे थे। इब्तिहाज और अमसाल भी गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे जब मुस्कान ने इब्तिहाज का रास्ता रोका था। इब्तिहाज को मुस्कान वैसे ही बहुत थर्ड क्लास लगी थी और उस हरकत पे इब्तिहाज का दिल चाह रहा था कि मुस्कान को शूट कर दे। थैंक यू सो मच मीर, मुस्कान ने एक अदा से कहा था और अपना हाथ इब्तिहाज के सामने किया था मिलाने के गर्ज से। इनका नाम इब्तिहाज है, मीर तो सिर्फ मैं ही बुला सकती हूँ। नाउ गेट लॉस्ट। अमसाल ने मुस्कान का बड़ा हुआ हाथ पकड़कर उसे दूसरी जानिब धकेला था और खुद इब्तिहाज का हाथ पकड़ के गाड़ी की जानिब बढ़ गई थी। इब्तिहाज तो खुशी से बेहोश होने को था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही अमसाल है जो उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती। इब्तिहाज अमसाल के हाथ में मौजूद अपना हाथ देखकर मुस्कुराया था जिसे अमसाल ने मजबूती से थामे रखा था, जिसे वो अगर उसकी गिरफ्त ढीली हुई तो इब्तिहाज कहीं भाग जाएगा। दूसरी जानिब अमसाल के दिल में भूचाल आया हुआ था। वो अपने इस रद्द अमल की वजह जानने से कासिर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अमसाल ये बात मानने को तैयार न थी कि वो मुस्कान से जेलस हो रही है। अमसाल अब इब्तिहाज का हाथ छोड़ चुकी थी और बगैर यहाँ वहाँ देखे गाड़ी में बैठ गई थी। इब्तिहाज सीटी पे किसी गाने की धुन बजाता हुआ गाड़ी में बैठा था और खुशी खुशी गाड़ी स्टार्ट करके अब रिवर्स कर रहा था। अमसाल अपना चेहरा खिड़की की जानिब किए बैठी थी। उसे अब अपनी थोड़ी देर पहले की गई हरकत पे गुस्सा आ रहा था और शर्मिंदगी अलग हो रही थी क्योंकि वो तो इब्तिहाज से लाताल्लुकी का इजहार करती थी, लेकिन आज रकाबत में ही सही उसने अपना हक इब्तिहाज पे जताया था। आज तो मैं पूरे ऑफिस और मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। इब्तिहाज अपना निचला होंठ दांतों में दबाए टेढ़ी आंखों से अमसाल को देखते हुए शरारत से बोला था। अमसाल कोई जवाब न दे रही थी। मुंह अब तक शीशे की जानिब था लेकिन सेंटर कंसोल पे मौजूद उसका हाथ मुसलसल हरकत कर रहा था। अमसाल की उंगलियां ऊपर नीचे हरकत कर रही थी। जब भी वो किसी सोच में या उलझन में होती तो यही करती थी। लगता है आसपास कहीं आग लगी हुई है, इब्तिहाज सोचते हुए बोला था। अंदाज चिढ़ाने वाला था। चुपचाप गाड़ी चलाएं आप। अमसाल इब्तिहाज को घूरते हुए दांत पीस कर बोली थी। ऐसे मत देखो, प्यार हो जाएगा। इब्तिहाज शरारती अंदाज में बोला था जबकि अमसाल ने अपनी नजरों का जाविया बदल लिया था और सामने रोड पर भागती गाड़ियों को देख रही थी। वैसे बहुत प्यारी लगती हो जब मेरे लिए जेलस होती हो। इब्तिहाज शायद अमसाल से डांट खाना चाह रहा था। मैं कोई जेलस वेलस नहीं हुई, आपको खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है, अमसाल ने सामने देखते हुए ही जवाब दिया।
अब मुझसे झूठ बोलोगी तुम? मैं जो तुम्हारी आंखें पढ़ लेता हूँ, तुम्हारे चेहरे के तासुरात से समझ जाता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे नहीं झुठला सकती आप मैडम। इब्तिहाज अमसाल को देखते हुए बोला था, आंखों से मोहब्बत झलक रही थी। अमसाल ज्यादा देर इब्तिहाज के जज्बात लुटाती आंखों में ना देख पाई थी। सिग्नल लाल होने की वजह से तमाम गाड़ियां रुकी हुई थी। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? आपको जो समझना है समझे आप। अमसाल के पास कोई और जवाब ना था क्योंकि वो सच में जेलस हुई थी। वैसे तो मुझे सब छोटे मीर कहकर बुलाते हैं, लेकिन सिर्फ तुम मीर कहकर बुला सकती हो। इब्तिहाज ने सेंट्रल कंसोल पे मौजूद अमसाल का हाथ थामते हुए कहा, जबकि इब्तिहाज के लम्स पे अमसाल ने फौरन इब्तिहाज की जानिब देखा था। हाथ छोड़े, मेरा ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। अमसाल अपना हाथ छुड़वाने की सही करते हुए बोल रही थी, नहीं नहीं, पहले बोलो मीर, प्लीज मेरा हाथ छोड़ें, फिर छोड़ूंगा। इब्तिहाज की आंखों में शरारत नाच रही थी। हरगिज नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, आप मेरा हाथ छोड़ें। अमसाल फौरन बोली थी, लेकिन इब्तिहाज ने नफी में गर्दन हिलाई थी। इब्तिहाज ने एक हाथ से अमसाल का हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ स्टेयरिंग संभाले हुए था। मीर प्लीज मेरा हाथ छोड़ें। काफी देर गुजरने के बाद अमसाल की आवाज आई थी और साथ ही इब्तिहाज के चेहरे पे फातिहाना मुस्कुराहट। ओ माय गॉड, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? अब तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इब्तिहाज के ड्रामे शुरू हो चुके थे। ये चीटिंग है, आपने कहा था मैं ऐसा बोलूंगी तो आप छोड़ देंगे। एक नंबर के चीटर हैं आप। अमसाल आग बगोला हो गई थी। चीटर नहीं हूँ, अपनी बीवी का हाथ पकड़ा है मैंने, किसी और की बीवी का नहीं। इब्तिहाज ने फौरन जवाब दिया था, किसी और का पकड़ कर तो दिखाएं। अमसाल जल्दबाजी में दिल की बात जबान पर ले आई थी। क्या कहा? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? इब्तिहाज को वाकई अपने कानों पे यकीन न आया था। क्या? मैंने कुछ नहीं कहा, आपके कान ही बज रहे हैं। यकीनन आप छोड़ भी दे मेरा हाथ। अमसाल ने इब्तिहाज को एक बार फिर घूरी से नवाजा था। तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और का हाथ नहीं पकड़ूंगा, वादा रहा। इब्तिहाज ने मुस्कुराते हुए कहा था और फिर बहुत अकीदत और मोहब्बत से अमसाल के हाथ पे बोसा देकर छोड़ दिया था। अमसाल ने अपना हाथ फौरन उसे अपनी गोद में रख दिया था, जबकि चेहरे पे ना चाहते हुए भी धनक के रंग नुमाया हुए थे। वैसे तुमने उस चूजे को थप्पड़ क्यों मारा था? इब्तिहाज को अचानक याद आया था, इसलिए पूछ लिया था। अमसाल ने अरहान को थप्पड़ मारा था। ये मंजर इब्तिहाज देख भी चुका था और अमसाल को दिल में इस कारनामे पे दाद भी दी थी। सब बता दूं आपको? अमसाल इस वक्त अच्छे मूड में लग रही थी, शायद दोस्तों से मिलने का असर था। उसने कोई बदतमीजी की थी? इब्तिहाज संजीदा अंदाज में बोला था, नहीं, मुझसे भला कौन बदतमीजी कर सकता है, बस कुछ कहा था उसने जो उसे नहीं कहना चाहिए था। अमसाल ने भी संजीदगी से जवाब दिया था। इब्तिहाज अमसाल को घर छोड़कर ऑफिस चला गया था। दिन तेजी से गुजर रहा था और अब अमसाल की इम्तिहानात होने में सिर्फ 3 हफ्ते बाकी थे। अमसाल खूब मगन सी होकर आजकल सिर्फ अपनी पढ़ाई पे मसरूफ रहती थी। इब्तिहाज के साथ अमसाल के रवैये में कुछ खास तब्दीली न आई थी, लेकिन दोनों के दरमियान छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती थी और इब्तिहाज फिलहाल इतने में ही खुश था। इब्तिहाज को यकीन था कि एक ना एक दिन वो अमसाल के दिल की दुनिया को पता कर लेगा और इस दिन के लिए इब्तिहाज अपनी आखिरी सांस तक इंतजार कर सकता था। रात का खाना सब खा चुके थे और अमसाल कुछ देर सबके हमरा बैठ कर अब दोबारा अपने कमरे में आ गई थी और एक बार फिर से किताबों में मसरूफ हो गई थी। अमसाल को हमेशा से ही तन्हाई में पढ़ने की आदत थी। वो जिस कमरे में पढ़ रही थी वहां से इंसानी वजूद का गुजरना ममनू था, लेकिन दूसरी जानिब इब्तिहाज था जो अमसाल के सर पे मंडलाता रहता था। फिर बहुत बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर तंग आकर अमसाल बेड पे मौजूद कुशन इब्तिहाज को दे मारती थी, जिसे वो महारत से लगने से पहले पकड़ लेता था। 11 बज रहे थे जब इब्तिहाज कमरे में दाखिल हुआ था। सामने बेड पे अमसाल बैठी हुई थी, जिसके आसपास किताबों का समंदर सा था। दुपट्टे से बेनियाज वजूद, बाल जूड़े में कैद थे, लेकिन कुछ लटों ने चेहरे का अहाता किया हुआ था और चेहरे पे उलझन ली। अमसाल किताब पे झुकी, शायद कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। दाएं हाथ में कलम पकड़ रखा था, जिससे खाली सफ़े पे कुछ लिखती, लेकिन फिर उसको काट देती और दोबारा किताब में कुछ ढूंढने लगती। अमसाल को ऐसे देख इब्तिहाज के सोए हुए जज्बात अंगड़ाई लेकर नींद से बेदार हुए थे, जिन्हें फिलहाल मीर इब्तिहाज दोबारा सुलाने की कोशिश कर रहा था। क्या कर रही हो? इब्तिहाज अमसाल के सामने बैठा था। क्या कर रही हो? इब्तिहाज अमसाल के सामने बैठा था।
दिख नहीं रहा आपको, पढ़ रही हूँ, अमसाल मसरूफ मगर कदरे उकताहट से बोली थी। इब्तिहाज चुपचाप अमसाल को देख रहा था। काफी देर गुजरने के बाद भी जब वो कुछ ना बोला तो अमसाल ने अपनी गर्दन उठाकर उसकी जानिब देखा। अमसाल के देखने पे इब्तिहाज को होश न आया था और वैसे ही टिकटिकी बांधे अपनी जान से प्यारी हस्ती को तक रहा था। अमसाल का दिल इब्तिहाज की नजरों से घबरा कर जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। उसने इब्तिहाज की अपने अंदर तक उतरती नजरें महसूस करके एक बार खुद पे नजर डाली तो मालूम हुआ कि उसके वजूद पे दुपट्टा नदारद है। दुपट्टे की तलाश में अमसाल ने फौरन घबरा कर यहाँ वहां नजरें दौड़ाई थी और कुछ ही सेकंडों से अपने पास पड़ा दुपट्टा नजर आ गया था जिसे उसने अच्छी तरह खुद पर फैला लिया था। अमसाल के ऐसा करने पे इत्तेहाज के लबों पे जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई थी, जबकि दूसरी जाने वो अपनी नजरें झुकाए बेवजह ही किताब में कुछ ढूंढने लगी थी। हया के मारे रुखसार पे लाली बिखरी थी। दोनों के दरमियान मायने खेज खामोशी कलाम कर रही थी। तुम्हारे चेहरे पे इतनी उलझन क्यों है? दोनों के दरमियान हायल खामोशी के इत्तेहाज ने तोड़ा था, वरना शायद वो खुद पे काबू खो बैठता। थैंक्स टू यू, आपकी वजह से मेरी ये सारी क्लासेस मिस हुई थी और अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अमसाल ने सड़ा हुआ मुंह बनाकर जवाब दिया था। वो खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। लाओ दिखाओ मुझे क्या समझ नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूँ। इब्तिहाज ने पेशकश की। नहीं रहने दे, आपको क्या पता मेरी पढ़ाई का। अमसाल का पढ़ पढ़ कर दिमाग खराब हो गया था। हेलो मैडम, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शायद मेरा ताल्लुक भी बिजनेस की दुनिया से ही है और आपसे ज्यादा बड़ी डिग्री है मेरे पास। इब्तिहाज को आग ही तो लग गई थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आखिर आप ही के पास इंटर्नशिप की थी मैंने। अमसाल के जहन से वाकई ये बात निकल गई थी। याद करो, मैंने कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हें ट्यूशन दे दूंगा, वो भी मुफ्त में। तो लाओ किताब दिखाओ अपनी, आज पढ़ाने के मूड में हूँ मैं। इब्तिहाज ने अमसाल को अपनी कही बात याद दिलाई थी। नहीं, मुझे फिर भी नहीं पढ़ना आपसे, जाएं आप, मुझे पढ़ने दे, वैसे ही बहुत कम वक्त रह गया है मेरे पास। अमसाल ने इब्तिहाज की पेशकश को ठुकरा दिया था। मजाक मस्ती साइड पे, लेकिन अमसाल मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। इब्तिहाज अब बिल्कुल संजीदा हो चुका था। जो भी बात करनी है जल्दी करें, अमसाल ने बेतवज्जी से कहा। इधर देखो मेरी तरफ, जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरी बात सुना करो। इब्तिहाज अमसाल की किताबें एक जानिब करता हुआ उसके करीब हुआ था, जबकि इब्तिहाज के ऐसा करने से अमसाल की बोलती बंद हो गई थी। इब्तिहाज हद से ज्यादा संजीदा लग रहा था और अमसाल को ऐसा महसूस हो रहा था जिससे वो गुस्से में है। देखो अमसाल, अब हमारी शादी हो चुकी है, हम निकाह जैसे मजबूत रिश्ते में बंध गए हैं जो कि टूटने वाला नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा? कब तक तुम मुझे नजरअंदाज करती रहोगी, मुझसे बात नहीं करोगी? मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं बहुत खुदगर्ज हो गया था, लेकिन अमसाल ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारा साथ, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हें पाने के लिए किया था। इत्तेहाज एक पल के लिए रुका था। अमसाल बिल्कुल खामोश थी, चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासर ना था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वक्त बहुत कम था मेरे पास, इसलिए जो मेरे दिमाग में आया मैं कर गुजरा। मैं मानता हूँ बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, बहुत रुलाया है, लेकिन बाखुदा तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं हर पल अजियत में रहता था। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे अमसाल, तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजारना चाहता हूँ जैसे बाकी सब गुजारते हैं, मोहब्बत और खुशियों से भरी हुई। इब्तिहाज ने अपनी बात मुकम्मल की थी। लहजे में बहुत से जज्बात थे, मोहब्बत थी, इल्तिजा थी और शर्मिंदगी भी थी। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मैं आपको बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैंने निकाह वाले दिन ही बहुत साफ अल्फाज में आपको बता दिया था कि आप मेरे दिल तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। अमसाल सांस लेने को रुकी थी। क्या ये वाकई सच है? दिल ने दुहाई दी थी। जब मैं सब कुछ वाजे कर चुकी हूँ तो अब आपकी इन बातों का मकसद, आपको क्या लगता है आपकी इन बातों से, इस पछतावे से, जिस तकलीफ से मैं और मेरे घर वाले गुजरे हैं, उसका अजाला हो जाएगा? आखिर चाहते क्या हैं आप मेरे इब्तिहाज जांगिए? क्या यही काफी नहीं कि मैं उस शख्स के साथ एक ही छत तले रह रही हूँ जिससे नफरत है मुझे? अमसाल के लहजे में करवाहट थी। उसके सामने बैठा शख्स खुद की मंजिलें तय कर रहा था। वो क्या कहा था आपने मुझे? शतरंज का माहिर हूँ, अपनी मर्जी की बिसात बिछाता हूँ ना, है ना, यही कहा था ना? अब सुने इब्तिहाज साहब, बिसात पलट चुकी है, अब ये बिसात मेरे हाथ में है। अब मैं चाल चलूंगी और आप तड़पेंगे, यानी चेकमेट। अमसाल तंज के निश्तर बरसा रही थी।
امثال کے اپنے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی. اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھول جاؤ سب اور معاف کر دو اس شخص کو، لیکن دماغ تھا جو کہہ رہا تھا کہ تم اتنی آسانی سے سب کچھ کیسے بھول سکتی ہو. یہ شخص تو ساحر ہے، اپنی باتوں سے تمہارے دل کو اپنی جانب کسی مقناطیس کی طرح کھینچ رہا ہے. دل کہہ رہا ہے کہ خود کو حوالے کر دو اس شخص کی پناہوں میں، تمہاری تمام تکالیف اور درد مٹ جائیں گے. لیکن وہ ناکویشی جانور مسلسل اس مہذب دل کی نفی کر رہا تھا. اس دل و دماغ کے بیچ میں چھڑی جنگ آج ایک بار پھر دماغ جیت گیا اور دل روٹھ کر خاموش ہو گیا تھا. اس جنگ کا نتیجہ یہی نکلا تھا کہ امثال نے دل کے بجائے دماغ کو فوقیت دی تھی اور تمام تلخ باتیں سوچے سمجھے بغیر کہہ گئی تھی، جس نے سامنے بیٹھے شخص کے دل کو چھلنی کر دیا تھا. ابتہاج کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا، درد اور تکلیف کا ہر تاثر ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، لیکن زبان سے اب تک ایک لفظ بھی جاری نہ ہوا تھا. ان سنہری آنکھوں میں قریب واضح تھا جسے محسوس کر کے بھی وہ دشمن جان نظر انداز کر رہی تھی. ابتہاج کو اپنے آنسو اپنے دل پہ گرتے محسوس ہو رہے تھے. تم غلط سوچ رہی ہو، بہت غلط. میں اپنے کہے پر آج بھی قائم ہوں اور رہوں گا. بساط پلٹی نہیں ہے امثال بی بی، بساط پلٹے گی اور وقت آنے پر میں خود اسے پلٹ دوں گا، ایسا کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو پائے گا. ابھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ایک دھوکہ ہے، سراب ہے. یہ بساط میں نے خود تمہارے حوالے کی ہے. شطرنج کا میں آج بھی بادشاہ ہوں اور چیک میٹ کون ہوگا یہ تو تم دیکھو گی. بہت دیر کی خاموشی کے بعد کمرے میں ایک آواز گونجی تھی، برف کی مانند ٹھنڈی، جما دینے والی. امثال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی تھی جبکہ ابتہاج اٹھ کر ٹیرس پہ جا چکا تھا. ابتہاج اتنا تلخ ہونا نہیں چاہتا تھا لیکن امثال اسے مجبور کر چکی تھی. امثال نے المیر کے متعلق جو باتیں ارحان سے کی تھی وہ تمام باتیں ارحان کے دماغ میں گھوم رہی تھی. ارحان کو اب المیر کا اس کے لیے الگ رویہ سمجھ آ رہا تھا. ہمیشہ ارحان کے کاموں میں آگے رہنا، ہمیشہ اس کی سائڈ لینا. ارحان خود سے یہی سوال کر رہا تھا کہ وہ یہ سب محسوس کیوں نہیں کر پایا. اس دن امثال کا ابتہاج کے لیے انجانے میں ہی صحیح لیکن شدت پسندی کا مظاہرہ کرنا ارحان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب امثال کبھی بھی اس کی نہیں ہو سکتی. اور پھر اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے گا. یہ راہ انتہائی کٹھن ہونے والی ہے، یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتا تھا، لیکن اب وہ امثال کو اپنی جانب سے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. ارحان اپنے بیڈ پر لیٹا یہی باتیں سوچ رہا تھا. رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی اور نہ جانے کب وہ سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں کھو گیا. ابتہاج ٹیرس پہ کھڑا، چہرہ آسمان کی جانب کیے بند آنکھوں سے اپنے دل میں ہوتی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو امثال کی باتوں سے ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. ابتہاج بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا لیکن وہ ظالم اپنی باتوں سے اس کا امتحان لیتی تھی. ابتہاج نے اپنے کرتے کی جیب سے سگریٹ نکالی تھی اور لائٹر کی مدد سے اسے سلگایا تھا. دھواں ہوا میں آزاد ہوا تھا. ابتہاج سگریٹ کی مدد سے اپنے اندر برپا حشر کو ختم کرنا چاہ رہا تھا. اب ابتہاج ریلنگ پہ جھکا ہوا تھا. اندر کمرے میں موجود امثال کا دل اب کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا تو سامنے کھلی کتابوں میں خاک لگتا. اس کی نظروں کے سامنے ابتہاج کا کچھ دیر والا چہرہ گھوم رہا تھا جس پہ مایوسی، اداسی، ضبط، غصہ اور آخر میں سرد تاثرات نمایاں تھے. امثال کو اپنے کہے گئے لفظوں پہ پچھتاوا ہو رہا تھا لیکن کیا فائدہ، اب تو وہ بول چکی تھی. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شرمندگی امثال کو مزید اپنے گھیرے میں لے رہی تھی. اسے یاد آ رہا تھا ابتہاج کا اس کے پیچھے پھرنا، اس کا کسی چھوٹے بچے کی طرح خیال رکھنا. ابتہاج کی صبح بھی امثال سے ہوتی تھی اور اس کی رات بھی امثال ہی پہ آ کر ختم ہو جاتی تھی. دل اور دماغ میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو چکی تھی لیکن اس بار دل بازی لے گیا تھا اور امثال فوراً اٹھ کر ٹیرس کی جانب دوڑی تھی. امثال دبے پاؤں ٹیرس میں داخل ہوئی تھی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا تھا. سامنے کھڑے ابتہاج کے امثال کی جانب پیٹھ تھی. ہوا سے ابتہاج کے بھال ماتھے پر کبھی اٹھتے. امثال اب آہستہ چلتے ہوئے ابتہاج کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے چوڑے شانوں کو دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ بات کیسے شروع کی جائے. امثال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور پھر دھواں اٹھتا دیکھ کر اس کا اپنا چہرہ غصے سے دھواں دھواں ہونے لگا تھا. سگریٹ سے امثال کو سخت قسم کی چڑ اور نفرت تھی. ابتہاج سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگا رہا تھا اور اس کے پیچھے کھڑی امثال کا خون یہ سوچ کر کھول رہا تھا کہ اس کا شوہر سگریٹ کیسے پی سکتا ہے.
अमसाल ने इतने अरसे में कभी भी इब्तिहाज को सिगरेट पीते हुए न देखा था। ये क्या बदतमीजी है। इब्तिहाज गुस्से से दहाड़ा था क्योंकि अमसाल ने उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक दी थी। इब्तिहाज की दाढ़ पे अमसाल का दिल उछल गया था और वो खुद भी 2 कदम पीछे हुई थी। आप सिगरेट भी पीते हैं? अमसाल ने अजीब सी शक्ल बनाकर कहा, हाँ पीता हूँ, क्या कर लोगी तुम? इब्तिहाज ने दूसरी सिगरेट सुलगाई थी। उसे अब अमसाल की सूरत देखकर भी गुस्सा आ रहा था। नफरत है मुझे सिगरेट से और सिगरेट पीने वालों से भी। अमसाल ने दोबारा इत्तेहाद के होंठों में दबी सिगरेट निकालकर फेंक दी थी। बदले में उसे इत्तेहाद के सख्त तेवर का सामना करना पड़ा था। तो ये मेरा मसला नहीं है, और वैसे भी तुम कौन सी मेरे इश्क में डूबी हुई हो? इत्तेहाद के लहजे से ही उसके इंतहाई खराब मूड का अंदाजा हो रहा था, और खराब मूड में इत्तेहाद बिल्कुल भूखे शेर की मानने लगता था। तो ये कि आप सिगरेट नहीं पी सकते बस। अमसाल ने हुक्मिया लहजे में कहा, बीबी जाग जाएं, क्योंकि मीर इत्तेहाद किसी के हुक्म वसूल नहीं करता। और दूसरी बात, तुम ये बीवियों वाला रौब किस खुशी में दिखा रही हो? इत्तेहाद से बहस करने का मतलब था कि अपनी शामत लाना, लेकिन हम सामने भी अमसाल थी। ये क्या बीबी बीबी लगा रखा है? मैं कोई 50 साला औरत हूँ? अमसाल ने लड़ाका औरतों की तरह कमर पे हाथ रखकर कहा। इब्तिहाज ने कोई जवाब ना दिया था और सामने आसमान पे चमकते 14वीं के चांद को देखने लगा था। और हाँ, मीर इब्तिहाज किसी का हुक्म माने या ना माने, उन्हें अमसाल इब्तिहाज का हर हुक्म मानना होगा। अमसाल अनजाने में इब्तिहाज पे अपना हक जता रही थी। अमसाल के मुंह से उसके नाम के साथ अपना नाम सुनकर इब्तिहाज को बहुत अच्छा लगा था। अब इब्तिहाज की नजरें अपनी जिंदगी के चांद पे थी। ऐसे क्या घूर घूर कर देख रहे हैं? मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। अमसाल इतना बोलकर हंसने लगी थी। वो इब्तिहाज का मूड अच्छा करना चाहती थी। अमसाल को ऐसे हंसता देख इब्तिहाज को अपनी तकलीफ कम होती हुई महसूस हुई, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं था और एक बार फिर अपना चेहरा मोड़ लिया था। इधर तो देखें, अमसाल ने मासूमाना अंदाज में एक और हुक्म जारी किया था। क्या है अब? इब्तिहाज का दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था, लेकिन वो नरम पड़ने के मूड में न था। अमसाल खुद भी नहीं जानती थी कि वो इस वक्त उस शख्स को मना रही है जिससे कुछ देर पहले नफरत का दावा कर रही थी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मैं कुछ ज्यादा ही तलखी इख्तियार कर गई। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अमसाल गर्दन झुकाए बोली थी। वो वाकई शर्मिंदा थी। इत्तेहाज को अमसाल इस वक्त इतनी मासूम लग रही थी कि इसका दिल चाह रहा था अमसाल के गाल खींच ले, लेकिन वो बिना कोई हरकत किए खामोश रहा। क्या हम दोस्त बनकर नहीं रह सकते? थोड़ी देर गुजरने के बाद इत्तेहाज की आवाज आई थी। क्या मतलब? अमसाल ने सवालिया नजरों से इत्तेहाज को देखा था। मतलब ये कि क्यों ना हम दोनों आपस में दोस्ती कर लें और दोस्त बनकर रहें। भूल जाओ कुछ अर्से के लिए कि हमारे दरमियान क्या रिश्ता है। इतनी बात तो मान सकती हो ना तुम मेरी? इत्तेहाज अमसाल के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए बोल रहा था। मैं हर किसी को अपना दोस्त नहीं बनाती। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, आज से हम दोस्त हैं। अमसाल ने पहली बात कहकर इब्तिहाज के चेहरे के तासरात देखे थे, जो कि मायूसी के थे। फिर हंस के इब्तिहाज की बात मान ली थी। अब इब्तिहाज खुलकर मुस्कुराया था। आप ज्यादा फ्री ना हो, अच्छा? दोस्त ऐसी हरकतें नहीं करते। अमसाल, जो इब्तिहाज की मुस्कुराहट में खो गई थी, इब्तिहाज के बोसा देने पे नरोठेपन से बोली थी, हाँ हाँ हाँ, लेकिन ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पेशल दोस्त हूँ ना। इब्तिहाज खुलकर हंसा था। एक सीक्रेट बताऊं? अमसाल ने राजदारा अंदाज में कहा। क्या सीक्रेट? इब्तिहाज ने तजस्सुस से पूछा था। आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। अमसाल अपनी बात कहकर अंदर कमरे में भाग गई थी, जबकि इब्तिहाज को खुशगवार हैरत हुई थी। अचानक से सब कुछ बहुत हसीन लगने लगा था। तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा था? आज मीर इब्तिहाज तुम्हें पढ़ाने का शर्फ बख्शेंगे। इब्तिहाज बोलते हुए खुद भी कमरे में वापस आया था। इब्तिहाज अमसाल के पास आकर बैठा था और अब उसे कुछ समझा रहा था। दोनों की दोस्ती का आगाज हो गया था और ये दोस्ती कहाँ तक जानी थी, ये देखना अभी बाकी था। इम्तिहान शुरू हो गए थे और अमसाल को हमेशा की तरह इम्तिहान के दौरान खाने पीने का कोई होश न था। वो फजर की नमाज के बाद पढ़ने बैठ जाती थी और रात गए तक पढ़ती रहती थी। इब्तिहाज ने घर के तमाम मुलाजमाओं को सख्ती से ताकीद की हुई थी कि वो अमसाल को वक्तन फवक्तन खाने पीने की चीजें देती रहें। अमसाल को अपने तमाम ससुराल वालों का ताउन हासिल था, इसलिए वो बहुत सुकून से अपने इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। अमसाल को खुशी थी कि ये इम्तिहानात उसकी जिंदगी के आखिरी इम्तिहान थे, लेकिन कुछ जाने अभी उसे मजीद के इम्तिहानात से गुजरना था। उसका इल्म तो सिर्फ उस पाक जात को था। अमसाल इस वक्त
किचन में मौजूद थी और खाना बना रही थी। इम्तिहान हो रहे थे लेकिन उसको अपने बहू होने की जिम्मेदारी भी निभानी थी। अमसाल पे इस किस्म का कोई भी दबाव ना था लेकिन उससे खुद ख्याल था अपनी जिम्मेदारियों का। इफ्तिहाज तो उसे मना कर करके थक गया था लेकिन अमसाल सुनती कहाँ थी उस बेचारे की। बेटा तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? अमसाल सब्जी काट रही थी जब जन्नत बेगम किचन में आई थी। आंटी आज मेरी बारी है खाना बनाने की, कल महारविश भाभी ने बनाया था। अमसाल ने जवाब दिया था। वो महसूस कर रही थी जन्नत बेगम का रवैया शुरू के मुकाबले में उस दिन से अच्छा हो रहा था। जहांगीर मैंशन में मुलाजमों की एक फौज थी लेकिन फिर भी यहाँ की रिवायत थी कि खाना घर की औरतें ही बनाती थी। पहले ये काम जन्नत बेगम का था लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी महारविश और अमसाल ने खुशी खुशी संभाल ली थी। जहांगीर को तुम बाबा के कर पुकारती हो और मुझे आंटी, क्या ये खुला तजाद नहीं? मुझे भी मामा कहकर बुलाया करो जैसे सब कहते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। तुम और महारविश मेरे लिए बहुएं नहीं बल्कि बेटियां हो और मुझे माफ कर दो बेटा, मैं शर्मिंदा हूँ अपने साबका रवैये पे। जन्नत बेगम ने पहले मस्ती भरा शिकवा किया था और फिर आगे की बात इंतहाई मोहब्बत और अपनायत से की थी। जन्नत बेगम काफी दिनों से अमसाल के साथ अपने साबका रवैये की माफी मांगना चाह रही थी। आज उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने और अमसाल के दरमियान इस अजनबियत की दीवार को गिरा देंगी। सॉरी आंटी। ओ नहीं मामा, अब से मैं मामा कहकर ही मुखातिब करूंगी आपको और प्लीज आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें मामा। आप मेरी बड़ी हैं और बड़े छोटों से माफी नहीं मांगा करते। जन्नत बेगम के मोहब्बत भरे बोलों से अमसाल की आंखें नम हो गई थी। उसे अपनी मामा की याद आने लगी थी। अरे मेरा बच्चा, रो क्यों रही हो चंदा? जन्नत बेगम मुस्कुराई थी अमसाल के फिर से आंटी बोलने पे और फिर उसे गले लगाकर चुप करवाया था। अमसाल की खुशी नाकाबिले बयां थी। ओहो, यहाँ तो सास बहू का मिलन हो रहा है। अचानक से हैदर की आवाज आई थी जिसमें अमसाल और जन्नत बेगम दोनों ही उसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। हैदर किचन के वस्त में खड़ा था, कैमल ब्राउन पैंट और ब्लैक शर्ट पे अपना व्हाइट कोट पहने। वो बहुत डैशिंग लग रहा था। चेहरे पे वही शौक सी मुस्कुराहट थी जो उसकी तबीयत का खासा थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जन्नत बेगम को हैरत हुई थी क्योंकि दोपहर के वक्त वो अस्पताल में ही होता था। मामा, आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा आज आपके साथ लंच करेगा लेकिन यहाँ तो आप हैरत के समंदर में गोताजन हैं। हैदर का अक्सर ही नफीस उर्दू बोलने वाला बटन ऑन हो जाता था। बहुत ड्रामे करते हो तुम हैदर, सुधर जाओ। मुझे तो समझ नहीं आता कि सर्जरी करते वक्त भी संजीदा होता होगा या उसके दौरान भी चुटकुले छोड़ता होगा। जन्नत बेगम की बात पे अमसाल और हैदर दोनों ही हंसने लगे थे। अमसाल, स्ट्रॉन्ग सी चाय तो पिला दो प्लीज। हैदर ने अमसाल से फरमाइश की थी। अमसाल हैदर से छोटी थी इसलिए वो उसे नाम से बुलाता था लेकिन इम्तिहाज के सामने वो ये गलती नहीं कर सकता था, इसलिए भाभी कहकर पुकारता था। कोई जरूरत नहीं है, बातों बातों में कहना ही भूल गई, चुप बोलना था। अमसाल बेटा तुम जाओ और अपनी पढ़ाई करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें काम करने की जब तक तुम्हारे इम्तिहान हो रहे हैं। जन्नत बेगम अटल लहजे में बोली थी। लेकिन ये बहुत मजे की चाय बनाती है मामा प्लीज। हैदर बच्चों की तरह जिद कर रहा था। कोई बात नहीं मामा, मैं अपने डैशिंग भाई के लिए चाय बनाने की बात पढ़ लूंगी। अमसाल मुस्कुराते हुए बोली थी और उसके कहने पे जन्नत बेगम भी मुस्कुराई थी। साथ में हैदर भी खुश हो गया था। सुनो बहना, ये डैशिंग वाली बात अपने खड़ूस शोहर के सामने ना बोलना वरना बेचारा जेलस होगा और मेरा कीमा बना देगा। हैदर ने मुंह बनाते हुए कहा था। जन्नत बेगम नफी में सर हिलाकर बाहर चली गई थी जबकि अमसाल हैदर की बात पर हंसते हुए चाय बनाने लगी थी। पीर का दिन था और आज पहला पेपर था। सब लोग जल्द पहुंच चुके थे और सलाम दुआ के बाद रट्टे लगाने का काम जोरों शोर से जारी था। अरहान, अशमील और रेहान हमेशा से इम्तिहानात के मामले में बहुत फिक्र रहते थे और माहा भी उनमें शामिल थी। आखिरी वक्त तक अमसाल और अरमील ही किताबों में सर लिए बैठी रहती थी, इसलिए उनको बाकी चार लोग बुक वाम 1 और बुक वाम 2 कह कर बुलाते थे। बस कर दो भाई तुम दोनों, सबसे अच्छी तैयारी तुम दोनों की होती है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टेंशन लेती हो और इन किताबों का पीछा नहीं छोड़ती। माहा सख्त किस्म की बोर हो रही थी इसलिए उकता कर बोली थी और अमसाल के हाथ से किताब छीन ली थी। खुद भी पढ़ो और हमें भी पढ़ने दो, तुम कैसे इतना चिल रहती हो लड़की? अमसाल माहा से अपनी किताब वापस लेने की कोशिश करते हुए बोली थी। माहा अमसाल की किताब लेकर भागी थी और अमसाल उसके पीछे लगी थी। दोनों सुबह सुबह टॉम एंड जेरी की तरह एक दूसरे के पीछे थी। अलमीर ने दोनों को देख कर नफी में सर हिलाया था जैसे कह रही हूँ इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मेरे साथ रहकर अभी तक तुमने पेपर में चिल रहना नहीं सीखा।
महा अपनी सांस हमवार करते हुए बोली थी। महा की बच्ची बुक दो ना, बस आखिरी टॉपिक रहता है, फिर पक्का रख दूंगी। अमसाल मिन्नत करते हुए बोल रही थी। खुदा का खौफ करो, मेरी बच्ची कहाँ से आई अभी? महा ने हैरत से कहा था। उसके ड्रामे शुरू हो चुके थे। ही वेरी फनी। अमसाल ने मसनूई अंदाज में हंसकर महा को चिढ़ाया था और साथ ही उससे किताब वापस ली थी। टेंशन नहीं लो इतनी, मेरे जीजा जी हैं ना, अगर तुम फेल हो भी गई तो एक फोन करेंगे वो और तुम पास। माहा ने अपनी दाएं आंख दबाते हुए कहा था। अस्तगफिरुल्लाह, शुभ शुभ बोलो। अमसाल माहा को आंखें दिखाते हुए बोली थी। अरे वो देखो हमारे मीरू का हीरो उसे कंपनी दे रहा है। अमसाल अपनी मतूबा सफा ढूंढ रही थी जब माहा बोली। दोनों वापस अलमीर के पास जाने लगी थी। जब माहा ने देखा तो अरहान अलमीर के पास बैठा उससे कुछ बात कर रहा था। माहा की बात सुनकर अमसाल ने भी गर्दन उठाकर देखा था और दिल में उन दोनों की खुशियों की दुआ की थी। अलमीरा आसपास से बिल्कुल बेनियाज होकर पढ़ने में मसरूफ थी जब कोई उसके सामने आकर बैठा था। किसी की मौजूदगी का एहसास और वो सहरकुन खुशबू जिसके मालिक को वो लाखों में पहचान सकती थी। अलमीर ने गर्दन उठाकर देखा तो वो वापस झुकाना भूल गई। ग्रे शर्ट और साथ ब्लैक जीन्स पहने, बालों को खूबसूरती से सेट किए अरहान उसके सामने बैठा था और अलमीर के खुद को देखने पर मुस्कुराया था। अरहान को ये मुस्कुराहट तो अलमीर की जान लेती थी और इस वक्त भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। अरहान अलमीर को बहुत गौर से देख रहा था। आज उसे वाकई अलमीर की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। बस इसी लम्हे अरहान का दिल भी एक अलग धुन पे धड़कना शुरू हुआ था। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरहान ने अलमीर की गोद में मौजूद किताब को बंद करते हुए कहा था। हाँ बोलो, क्या बात है? अलमीर तो पहले से ही अरहान की जानिब मुतवज्जह थी। फौरन जवाब दिया। ऐसा करता हूँ, पेपर की बात करूंगा। अभी की तो तुमसे पेपर नहीं हो पाएगा। अरहान मुस्कुराते हुए बोला था जबकि अलमीर को उसकी ये मंतक समझ नहीं आई थी। अमसाल, मैं तुमसे अपने कहे अल्फाज और अपनी हरकतों की माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरहान जो कहना चाहता था वो उसने कह दिया था। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है अरहान, मैं समझ सकती हूँ वो सब तुम्हारा रद्द अमल था। जहाँ तक बात है तुम्हारी उस बात की, तो उसकी सजा मैंने तुम्हें उसी वक्त दे दी थी। मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा की तरह आज भी साफ है। अमसाल ने अरहान की शर्मिंदगी को अपने अल्फाज से खत्म कर दिया था। बहुत जोर से थप्पड़ मारा था तुमने, बदतमीज औरत। अरहान ने किसी मासूम से बच्चे की तरह रोनी सूरत बनाकर कहा था जिस पर अमसाल को बेसाख्ता हंसी आई थी। ये औरत किसको बोला? हाँ। अमसाल की हंसी को ब्रेक लगा था और वो लड़ाका अंदाज में गोया हुई थी। तुम औरत नहीं हो तो क्या मर्द हो? अरहान ने सोचते हुए कहा था। वो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। जवाब में अमसाल ने अरहान को कमर पे मुक्का मारा था। शादी के बाद लड़कियां औरत ही बन जाती हैं। अरहान अमसाल को चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था। अच्छा, और ऐसा किस किताब में लिखा है? हाँ, अमसाल के ड्रामे शुरू हो गए थे और फिर दोनों ही पागलों की तरह हंसने लगे थे। मैंने फैसला कर लिया है अमसाल कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अलमीर वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। ये बात मुझे आज शिद्दत से महसूस हुई है। मैं आज ही अलमीर से इस बारे में बात करूंगा। अब मैं मजीद सिंगल नहीं रह सकता। पता चला उसे भी कोई उड़ा ले जाए तो मैं क्या करूंगा? अरहान ने अपनी आखिरी बात मजाही अंदाज में कही थी। सब खैरियत तो है ना? अलमीर के चेहरे पे परेशानी के असरात थे। हाँ हाँ, सब खैर है। शक्ल पे 12 बजाने की जरूरत नहीं है। अरहान आम से अंदाज में बोला था। ओ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। महा की सुर बिखेरती आवाज अलमीर और अरहान के कानों में पड़ी थी। कैसा लगा और कौन सी वाली को देखकर? अरहान ने बहुत दिलचस्पी से पूछा था जबकि अलमीर ने महा को घूरी से नवाजा था। शर्म तो तुमको मगर आती नहीं? महा ने अरहान के कंधे पे मुक्का जड़ा था। आह, खासा मर्दाना हाथ है तुम्हारा। पता नहीं बेचारे अश्मील का क्या हाल करेगी ये। अरहान दुहाई देता हुआ उठकर भागा तो इससे पहले कि महा एक और मुक्का मारती। अरहान अरहान की बात का मतलब समझकर महा चीखी थी और उसके पीछे भागी थी जो कि काफी आगे जा चुका था। अमसाल और रणवीर का हंस हंस कर बुरा हाल था। पेपर देकर ये 6 लोग साथ ही इम्तिहानी कमरे से बाहर निकले थे। ये इनका हमेशा से मामूल था। पेपर देने के बाद जो भूख लगती थी उसका सिर्फ कैंटीन में ही था। इसलिए 6 दोस्तों का टोला अब कैंटीन में हंगामा मचाए रहे थे। यूनिवर्सिटी में तकरीबन सभी इनके ग्रुप को जानते थे। जहाँ ये 6 लोग होते थे वहाँ हल्ला गुल्ला होता था।
अरहान को अमसाल से अपने पिछले रवैये की माफी मांगनी थी, इसलिए उसने अमसाल को अपने साथ चलने का कहा था। बाकी के 4 लोग जगह रोक कर बैठे थे और अपने ही शुगल मस्ती में मसरूफ थे। अरहान ने हकीकत को तस्लीम कर लिया था और सब कुछ अल्लाह की रजा और बेहतरी समझकर कबूल कर लिया था। अमसाल अरहान और अलमीर के लिए बेइंतहा खुश थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और वक्त गुजरते साथ ही इंसान सब्र आ ही जाता है। खाना पीना हो चुका था और सब घर के लिए निकल रहे थे। अलमीर से बात करके अरहान ही उसे वापस छोड़ने वाला था। सब साथ ही पार्किंग की जानिब बढ़े थे। अमसाल बीच में चल रही थी, उसकी एक जानिब अरहान था और दूसरी जानिब अलमीर। अरहान ने अमसाल से कुछ कहा था जिस पर वो हंसना शुरू हो गई थी। साथ में अरहान भी हंस रहा था। दोनों एक दूसरे के हाथ पर जोरदार ताली भी मारी थी। दोनों शायद पागल हो गए थे। बाकी के 4 लोगों को बात का पता नहीं था, इसलिए वो लोग इन दोनों को सवालिया नजरों से देख रहे थे। अमसाल और अरहान ने बहुत मुश्किल से हंसी रोकी थी। इससे पहले अमसाल बाकियों को बात से आगाह करती करीब से गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया था जो काफी तेज था। सब चुप होकर उस गाड़ी को ढूंढ रहे थे जिसने हॉर्न दिया था। एक बार फिर जोरदार हॉर्न दिया गया था और सामने खड़ी ब्लैक रेंज रोवर से इब्तिहाज बाहर निकला था। इब्तिहाज के हॉर्न देने का मकसद था अमसाल को अपनी जानिब मुतवज्जा करना। सबकी नजर उसकी जानिब उठी थी और अमसाल तो गाड़ी और गाड़ी के मालिक को करोड़ों में पहचान सकती थी। ओह, क्या नायाब तरीका है भाई के बुलाने का। माहा ने अमसाल को कोहनी मारते हुए छेड़ा था जिस पे अमसाल ने उसे घूरा था। जाओ भाई, इससे पहले कि तुम्हारा शोर आकर मेरी दुर्गत बना दे। देखो कैसे घूर रहा है, जैसे अभी खा जाएगा मुझे। अरहान ने इब्तिहाज को देखते हुए अमसाल के कान में सरगोशी की थी। अरहान को इस तरह अमसाल के करीब और हंसी ठट्ठे करते देख इब्तिहाज के दिमाग की रगें तनी हुई थी। तो दूर रहो ना, घुस क्यों रहे हो मेरे अंदर। अमसाल ने अरहान को चपत लगाते हुए कहा था और फिर इब्तिहाज की जानिब देखा था जो चेहरे पर सख्ती लिए उन दोनों को ही देख रहा था। इब्तिहाज ने काले रंग का ब्रांडेड सूट पहन रखा था जिसका कोट फिलहाल गायब था। अलबत्ता काली वेस्ट कोट पहने हुई थी। ग्रे शर्ट की आस्तीनें ने कोहनियों तक मोड़ रखी थी। सुर्ख सफेद कसरती हाथों की नसें उभरी हुई थी। अमसाल की नजरें इब्तिहाज के हाथों की उभरी नसों से टकराई थी और वो खुद भी उन नसों में उलझ गई थी। घर जाकर देख लेना, तुम्हारे ही हैं। अलमीर ने शरारती अंदाज में अमसाल के करीब होकर कहा था और उससे ख्यालों की दुनिया से बाहर खींच लाई थी। जवाब में अमसाल ने मैं उनको नहीं देख रही कहा था। अमसाल और इब्तिहाज दोनों गाड़ी में थे। इब्तिहाज खामोशी और संजीदगी से गाड़ी चला रहा था। एक हाथ स्टेयरिंग पे था जबकि दूसरा हाथ गियर पे और आंखों में ग्लासेस लगाए हुए थे। पूरी रंगत पे नीली उभरी हुई नसें साफ वाज़ेह थी और अमसाल की नजरें बार बार भटक कर वहीं जा रही थी। अमसाल अपना दिलो दिमाग इब्तिहाज की जानिब से हटाना चाहती थी। इब्तिहाज की खामोशी से गाड़ी का माहौल कुछ अजीब से अंदर संजीदा था जो कि अमसाल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता कायम हो गया था और दोनों ही दोस्तों की तरह आपस में बातें करते थे। अमसाल अब इब्तिहाज की आदी होती जा रही थी, लेकिन वही अजली जिद्दीपन, वो इस बात को किसी तौर पर मानने को तैयार न थी। इतनी खामोश और संजीदा क्यों हैं आप? किसी से लड़ाई हुई है? अमसाल से मजीद खामोश ना रहा जा रहा था, इसलिए बात का आगाज किया। नहीं तो मैं क्यों लड़ूंगा किसी से बिला वजह। इब्तिहाज की नजरें सामने रोड पे थी। इब्तिहाज की खामोश होने की असल वजह अरहान का अमसाल में घुसना और उसके कान में सरगोशियां करना था। इब्तिहाज अमसाल के मामले में इंतहाई शिद्दत पसंद था। वो उसकी थी और इस सब का हक भी सिर्फ उसे ही था। आप क्यों लेने आए? मैं खुद ही आ जाती ड्राइवर के साथ। अमसाल ने दूसरी बात शुरू की थी। मैंने सोचा आज तुम्हारा पहला पेपर है तो मैं ही तुम्हें लेने आऊं। कैसा हुआ पेपर? इब्तिहाज आम लहजे में बोला था। वो चाहकर भी अमसाल पे सख्ती नहीं कर पाता था और ना ही उससे कोई सफाई मांगता था। आपको क्या लगता है कैसा हुआ होगा? अमसाल ने सेंटर कंसोल पे अपनी कोहनी लगाई हुई थी और आदतन हाथ थोड़ी के नीचे रखा था। मेरे ख्याल से तो अच्छा ही हुआ होगा। आखिर को पढ़ाया किसने है? इब्तिहाज ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। वाह भाई वाह, सारा क्रेडिट तो आप ले गए और जो मैंने मेहनत की वो। अमसाल ने मुंह बनाते हुए नाराज लहजे में कहा था। हा हा हा, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी बीवी बहुत ज़हीन है। इब्तिहाज ने हंसते हुए कहा था और उसकी हंसी में अमसाल हमेशा की तरह खोने लगी थी, लेकिन इस बार उसने खुद पे काबू पा लिया था। मैं नाराज हूँ आपसे। हाँ, अमसाल ने किसी छोटे बच्चे की तरह कहा था। रूठे रूठे से मेरे सरकार नजर आते हैं, इब्तिहाज ने शायराना अंदाज में कहा था जो कि अपने अंदर कुछ शरारत समोए हुए भी था। अमसाल को अपनी हंसी रोकना मुश्किल लग रहा था। रूठे से क्या मतलब? रूठे हुए हैं।
अमसाल ने इब्तिहाज की तस्दीक की थी। तो फिर कैसे मानेंगी आप? इब्तिहाज ने हथियार डालते हुए कहा। आप रात में मुझे नूडल्स बनाकर खिलाएंगे फिर मानूंगी। अमसाल ने सोच कर मानने की शर्त रखी। मैं? मीर इब्तिहाज जहांगीर नूडल्स बनाएगा? इब्तिहाज ने मगरूर अंदाज में कहा था वो सिर्फ ड्रामे कर रहा था। जी बिल्कुल, आप ज्यादा ड्रामे ना करें या फिर ये कहें कि आपको बनाने नहीं आते। अमसाल का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। एक्सक्यूज मी मिसेस इब्तिहाज, मुझे हर तरीके का खाना बनाना आता है। आई एम अ बोर्न शेफ। इब्तिहाज ने अपनी गर्दन अकड़ाते हुए अमसाल की मालूमात में इजाफा किया था। क्या वाकई आपको खाना बनाना आता है? अमसाल सारी नाराजगी भूल गई थी और आंखों में चमक लिए हुई थी। अमसाल की हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसके शोहर को खाना बनाना आता हो। अमसाल और उसकी अजीब ख्वाहिशात। हाँ बिल्कुल, ऐसा कौन सा खाना है जो मैं नहीं बना सकता? जब मैं और भाई लंदन पढ़ने गए थे उस वक्त हम खुद ही खाना बनाया करते थे, क्योंकि कुक के हाथ के खाने की आदत नहीं थी। मैं अब भी बनाता हूँ खाना जब दिल करता है। इब्तिहाज ने तफसीली जवाब दिया था। अब तो मुझे भी खाना है आपके हाथों से बना हुआ खाना, अमसाल ने फरमाइश की थी। हाय, इतने प्यार से बोलोगी तो रोज खाना बना दिया करूंगा तुम्हारे लिए। ऐसा कैसे हो सकता था कि अमसाल कोई फरमाइश करे और इब्तिहाज उसे पूरा ना करे? नहीं, रोज नहीं, वो मैं खुद ही बना लूंगी, आप बस एक दिन कुछ बनाकर खिलाएं। अमसाल ने जवाब दिया था। जब आप हुक्म करेंगी बना दूंगा मेरी जान। गुलाम हाजिर है, इब्तिहाज ने सर को खम देते हुए कहा था। दोनों की बातें जारी थी। अमसाल अब इब्तिहाज से यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी और साथ ही रास्ते भी कट रहा था। बाकी सबके साथ अलमीर और हान भी निकल गए थे। अलमीर ने अभी कोई बात भी शुरू न की थी। वो कहीं सुकून वाली जगह पर अलमीर से बात करना चाह रहा था। दाएं जानिब क्यों जा रहे हो अरहान? मेरा घर बाएं जानिब से आता है। अरहान ने रास्ता बदला था जिस पे अलमीर फौरन बोली थी। हाँ पता है मुझे, लेकिन तुम इस वक्त अगवा हो चुकी हो। अब अगवा करके तुम्हें तुम्हारे घर तो लेकर जाने से रहा मैं। अरहान दुनिया जहाँ की मासूमियत अपने चेहरे पे सजा कर बोला था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अलमीर को आज अरहान कुछ अजीब लग रहा था। सुबह से अजीब सी बातें कर रहा है था। खराब थी, अभी कुछ दिन पहले ही तो ठीक हुआ हूँ। अरहान ने रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा था। यहाँ क्यों लाए हो मुझे? मामा को पता चला तो घर से बाहर निकाल देंगे मुझे, अलमीर परेशान सी बोली थी, जबकि अरहान ने उसकी जानिब का दरवाजा खोला था। मैं हूँ ना जवाब देने के लिए। वैसे भी तुम कौन सा पहली बार मेरे साथ आ रही हो, हम तो जाते ही रहते हैं। अरहान ने गाड़ी लॉक करते हुए अलमीर की परेशानी को कम करना चाहा। हाँ जाते हैं, लेकिन बाकी सब भी साथ होते हैं। मैं अकेली कभी नहीं गई तुम्हारे साथ लंच पे। अलमीर अब अरहान से थोड़ा पीछे चल रही थी। पीछे क्यों चल रही हो, आगे आओ। अरहान ने पहले अलमीर को अंदर दाखिल होने का इशारा किया था। वेलकम सर, आपका कंपार्टमेंट तैयार है। दोनों के दाखिल होते ही एक सूट में मलबूस शख्स अरहान से मुखातिब हुआ था। इस रेस्टोरेंट में अलग से कमरा नुमा जगह बनी हुई थी जो कि बाकी टेबल से अलग थी, जिन्हें फैमिली कंपार्टमेंट कहा जाता है। खास बुकिंग पर यहाँ लोग खाना खाने आते थे। अरहान अक्सर अपने घर वालों के साथ यहाँ आता रहता था, इसलिए इस रेस्टोरेंट का मैनेजर उसे अच्छे से जानता था। अरहान शुक्र अदा करके अलमीर को साथ लिए आगे बढ़ गया था। अरहान, ये कहाँ जा रहे हैं हम? देखो अब मुझे वाकई डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अलमीर के दिमाग में न जाने क्यों खतरे की घंटी बज रही थी। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे खुदा न खास्ता मैं कुछ गलत काम करने वाला हूँ। भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पे? अरहान जो थोड़ा आगे चल रहा था अलमीर की तरफ मुड़ते हुए बोला था। ऐसी बात नहीं है अरहान, तुम पे भरोसा है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है मुझे। अलमीर गर्दन झुकाते हुए बोली थी। अंदर चलो, सारा डर खत्म हो जाएगा। अरहान ने शीशे का दरवाजा खोला था और पहले अलमीर को अंदर जाने के लिए कहा था। अलमीर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, जो मंजर उसकी आंखों के सामने था उसे देख वो अपनी जगह साकित हो गई थी। अरहान ने अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया था। अलमीर हैरानी से मुंह पर हाथ रखे पूरा कंपार्टमेंट देख रही थी। कंपार्टमेंट बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। बीच में दो लोगों के बैठने के लिए टेबल और चेयर रखी थी, जिस पर मोमबत्तियां और फूल रखे थे। मोमबत्तियां जैसे जैसे जल रही थी उनमें एक खुशबू महक उठ रही थी, जिसने पूरे कंपार्टमेंट को अपनी लपेट में लिए महकाया हुआ था। बिल्कुल सामने मौजूद दीवार सजी हुई थी और बीच में हेलिम बलून से विलियम मैरी में लिखा हुआ था। इसके अलावा भी कंपार्टमेंट में लाल और काले रंग के गुब्बारे सजे हुए थे। अलमीर अरहान की जानिब मुड़ी तो उसे एक और हैरत का झटका लगा था। अरहान अपने एक घुटने के बल जमीन पे बैठा था। हाथ में मखमली डिबिया थी जिसमें खूबसूरत सी अंगूठी मौजूद थी, जिसके बीच में लाल हीरा
जिसे रूबी कहा जाता है, अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। अरहान चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट लिए अलमीर के तासुरात देख रहा था। अरहान, ये सब अलमीर इस वक्त बोलने की काबिल न थी। बहुत से जज्बात थे जिन्होंने उसकी जुबान पे कुफ्र लगाया था। अलमीर, क्या तुम मुझ जैसे सरफेरे आदमी से शादी करोगी? अरहान ने मुस्कुराते हुए सवाल किया था। तो तुम मेरे वालिदैन से बात करो, जो उनका जवाब होगा वही मेरा जवाब होगा। अलमीर के पास इससे बेहतर जवाब ना था। दिल तो चाह रहा था कि अभी के अभी हाँ कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। उनसे तो मेरे वालिदैन बात करेंगे, मैं फिलहाल तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा जवाब जानने के बाद ही मामा को भेजूंगा तुम्हारे घर तुम्हें मांगने। अरहान जितना रोमांटिक अंदाज में बोल सकता था बोलने की कोशिश कर रहा था। मेरा जवाब हाँ है, लेकिन फिर भी होगा वही जो मेरे वालिदैन चाहेंगे। अलमीर ने तेजी से धड़कते दिल के साथ जवाब दिया था। थैंक यू सो मच अलमीर, मेरी वीरान हुई जिंदगी में आने के लिए। अरहान ने अलमीर की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए खुशी से कहा था। अलमीर ने थोड़ी मजाहमत की थी। उसका कहना था वो अभी ये कीमती अंगूठी नहीं ले सकती, लेकिन अरहान तो अरहान था। आखिर उसे अंगूठी पहना कर ही दम लिया। अब मुंह सही करो अपना, 12 बजे हुए हैं तुम्हारी शक्ल पे जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो मैंने। अरहान अलमीर के बैठने के लिए चेयर पीछे करते हुए बोला था। क्या दुआएं यूं भी कबूल होती हैं? अलमीर ने दिल में खुद से सवाल किया था। हाँ, दुआएं ऐसी भी कबूल होती हैं अगर सच्चे दिल और पूरी लगन के साथ किसी को मांगा जाए और अपनी रब की रजा में राजी हो जाए, तो अल्लाह भी अपने बंदे को उसकी खुशी से नवाजता है। अलमीर भी अपने रब की रजा में राजी थी, इसलिए उसे पाक जात ने आज उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी से नवाजा था। अलमीर की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो उस पाक जात का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी। अमसाल और इब्तिहाज घर पहुंच गए थे। इब्तिहाज ने घर में मौजूद बड़े से पोर्च में गाड़ी पार्क की थी और साथ ही दोनों गाड़ी से बाहर निकले थे। जेक, जो कि काफी अरसे से फार्म हाउस में था, वापस आ चुका था। शादी के इस अरसे में अमसाल और जेक का सामना अब तक ना हुआ था। दोपहर का वक्त जेक की चहलकदमी का था, इसलिए फिलहाल वो आजाद घूम रहा था। इब्तिहाज पे नजर पड़ते ही जेक ने भौंकते हुए इब्तिहाज की जानिब दौड़ लगाई थी। जेक की आवाज सुनकर इब्तिहाज के होंठों पे मुस्कुराहट फैली थी, क्योंकि जेक इब्तिहाज का सबसे चहीता था, जिसे वो बहुत जिद करके इस घर में लाया था, वरना जन्नत बेगम इसके खिलाफ थी और इसी वजह से जेक को जहांगीर मैंशन के अंदर दाखिल होने की इजाजत न थी। जेक इब्तिहाज तक पहुंच चुका था, उसके पैरों के गिर्द घूम रहा था, फिर अपने 2 पैरों पे खड़े होकर इब्तिहाज को हाई फाइव किया था। इब्तिहाज घुटने के बल बैठकर जेक को प्यार कर रहा था। कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता! इब्तिहाज जेक को प्यार कर रहा था और जेक भी प्यार वसूल करने में मसरूफ था जब अमसाल की जोरदार चीख सुनाई दी थी। इतना बड़ा और तंदुरुस्त कुत्ता देख अमसाल का हार्ट फेल होने वाला था। जेक एक साइबेरियन हस्की था। अमसाल चिल्लाती हुई दोबारा गाड़ी की जानिब भागी थी और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, जो कि कभी न खुलता था क्योंकि गाड़ी लॉक थी। अमसाल की चीखों पुकार से जेक उसकी जानिब मुतवज्जह हो गया था। जैसे ही उसने अमसाल को देखा तो भौंकना शुरू हो गया। अमसाल जेक के लिए बिल्कुल गैर शनासा थी और ऐसे पालतू कुत्ते अजनबी लोगों को देख भौंकने लगते हैं। जेक के भौंकने की आवाज इतनी तेज थी कि अमसाल को अपना दिल बंद होता महसूस हो रहा था। इब्तिहाज तमाम सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था कि जेक भौंकते हुए अमसाल की जानिब दौड़ा। जेक को अपनी जानिब बढ़ते देख अमसाल बेचारी तो मरने ही लगी थी, लेकिन फिर उसकी नजर पोर्च में खड़ी वीगो पे पड़ी और वो फुर्ती से पीछे मौजूद खाली जगह पर चढ़ गई। जेक मुसलसल भौंकते हुए गाड़ी के आसपास कूद रहा था और वो गाड़ी पर चढ़ सकता था, लेकिन चढ़ नहीं रहा था क्योंकि उसको इस चीज की इजाजत न थी। इब्तिहाज ने जेक को खास तौर पर मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवाई थी। वो इशारों को बहुत अच्छे से समझता था। इब्तिहाज भी उस जगह पहुंचा था जहां अमसाल और जेक मौजूद थे। उसकी आंखों के सामने जो मंजर था वो देख इब्तिहाज को अपनी हंसी रोकना बहुत मुश्किल काम लग रहा था। अमसाल गाड़ी पे चढ़ी चिल्ला रही थी, खौफ से चेहरे पे 12 नहीं बल्कि पूरी घड़ी बनी हुई थी। जेक के भौंकने से अमसाल मजीद खायफ हो रही थी। दूसरी जानिब खड़े इब्तिहाज की हंसी बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका दूध सा सफेद चेहरा हंस हंस कर लाल हो रहा था। जो कुछ भी वो देख रही थी उसे किसी चीज पर यकीन नहीं आ रहा था। अलमीर के लिए आज का दिन उसकी जिंदगी का बेहतरीन दिन था। आज उसे अपने सब्र का फल मिल गया था। जिस शख्स से मोहब्बत के इजहार की ख्वाहिश वो न जाने कब से दिल में लिए बैठी थी, आज उसने इजहार कर ही दिया था। अलमीर को अरहान का यूं अचानक इजहार समझ न आया था।
इन्हीं सोचों में गर्क वो खोए हुए अंदाज में अपने सामने मौजूद प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। अरहान काफी देर से अलमीर को यही करते देख रहा था, इसलिए हुनकारा उभार कर बोलना शुरू किया था। मैं जानता हूँ अलमीर के तुम्हारे जहन में इस वक्त बहुत से सवालात हैं और उनके जवाब मैं भी दूंगा। मैं तमाम बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। ये सच है कि मैं अमसाल से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अब शायद नहीं करता या शायद करता हूँ, मैं भी इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता। उसकी शादी हो चुकी है और वो मेरे नसीब में कभी थी ही नहीं। इतना कहकर अरहान एक पल को रुका था। मैंने अमसाल से सच्ची मोहब्बत की थी और मोहब्बत को भुलाना आसान नहीं। जो कुछ भी हुआ उसे कबूल करने में मुझे वक्त लगा, लेकिन सच बताऊं तो अभी तक मैं अपनी मोहब्बत को भूल नहीं पाया हूँ और शायद कभी भी भुला नहीं पाऊंगा। मेरी एक तरफा मोहब्बत मेरे दिल के कोने में याद बनकर हमेशा महफूज रहेगी। मेरी इस बात से तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन तुम्हें शरई और कानूनी तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, उस वक्त से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होऊंगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत होगी, मेरा हर एहसास तुम्हारा होगा। अरहान ने अपनी आगे की बात अलमीर की आंखों में देखते हुए कही थी। अरहान के लहजे और आंखों में सच्चाई थी। सामने बैठी वो लड़की उसके जज्बात को बहुत अच्छे से समझ सकती थी, क्योंकि वो भी तो इसी एक एक तरफा मोहब्बत से गुजर रही थी। दोनों में फर्क ये था कि एक ने अपनी इस एक तरफा मोहब्बत को खो दिया था, जबकि दूसरे ने उसे पा लिया था। जिसने अपनी मोहब्बत को खोया था उसने खोकर भी अपने हक में बेहतरीन को पाया था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ कि मोहब्बत की ये दिलफरेब दास्तान आपको पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।